Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. नहीं, good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. Good afternoon. 7-6. Good afternoon, kids. Good afternoon, kid. Good morning, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. नहीं है। नहीं आया तो हमसे मत बात करना। नहीं बात आया। कर लेना। आया ही नहीं, हमको समझ में आया ही नहीं। हम गोबर 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 है नहीं तो यार, सुन नहीं है किसी दूसरे की। Yes, children. So, how much have you done till now? Hello. Yes, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. हाँ जी. So, till where have you done Yes, yesterday? ma'am. And we have to start new chapter. No, ma'am. We have to start with Question pairs answers नहीं and करने temples. हैं, कुछ नहीं करने हैं, सीधे न्यू चैप्टर Ma'am, स्टार्ट we करना है. have to start with pairs and temples. On page number 78. Page number 78. Just a minute. चलिए, so वैसे before we start about feasts and temples, yes, children. So, before we start with feasts and temples, you tell me, is there anything which you have not understood till now? Dhruti, say hi to your younger sister from my side. हाँ जी, बताइए. Is there anything which you have not understood till now about the topics which we have done? No, ma'am. Yes, children. Is there any doubt, any confusion about the previous Ma'am. topics? No, ma'am. So, shall we ma'am. begin with a new one? Yes, Okay. ma'am. So, temples is a very common term which we all know about. We know about temples, we know about priests, we know about Brahmins. But do you know who are peers? Peers कौन होते हैं? Who are peers? The topic we are going to begin today is peers and temples. So, peers कौन हुए? पीर बाबा सुना है कभी आपने? Religious saints. Yes, Chandra? Ma'am, religious saints. Exactly. The Islamic religious saints were known as Peer. Peer Baba बोलते हैं उनको. ठीक है? So as we have already read in this first chapter that it was a medieval period when Islam was brought to India, right? And it was brought to Bengal in the 11th century. When did it come to Bengal? 11th century. In the 11th century. 11th It 11th was century. when the Mughal Empire
builders from North India and Central Asia sought to control the region, right? So we know that usually the Mughal Empire was, the center of the Mughal Empire was the northern India, the region near the region in Delhi and around it, right? But then they started moving towards the east, right? And also decided to do some work in Bengal, right? So Mughals built their capital in the heart of the eastern delta at Dhaka. Right now, Dhaka is the capital of? Bangladesh. Bangladesh. Very good. Bangladesh it is, right? It is the most controversial country as of now, right? Why is it the controversial country? What is happening in Bangladesh? Can you give me some insight? Raghav Negri is Ma'am, they joining were very like late. burned. Ma'am, they were burning Hindu people. Yeah, right. So in Bangladesh, what is happening is, देखो हमें याद हमेशा याद रखना चाहिए. What they're doing is very, very wrong. They're doing it why? Because they are Hindus are in minority. Okay. In the coming years, when you'll come to class 8, you'll know you'll read about the topics such as marginalization, minorities, and you'll understand these topics. And that is why our constitution has made it very clear, right? That the rules mentioned in the constitution should be the same for all. Does not matter whether you belong to a majority community or a minority community, right? So ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए हमें किसी के भी साथ कि मतलब जैसे अभी हम बांग्लादेश में जो देख रहे हैं जो हो रहा है दैट इज वेरी रॉन्ग. Okay, the reason why I keep on asking you these questions is I want you to stay updated about what's happening in the world, right? If we are talking about SST, so SST is not only about books, right? It is also about what is happening in our social life, what is happening in India, what is happening around the world, right? Because again I've told you many a times, जब भी हम बाहर एग्जामिनेशन देने जाते हैं, कोई भी अच्छे लेवल का एग्जामिनेशन देते हैं, हम ओलंपियाड्स देते हैं, यस वहां पे आपकी बुक से कंटेंट आएगा ही आएगा, बट उसके साथ साथ दे विल आल्सो बी आस्किंग यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग जनरल नॉलेज, राइट? सो यू नीड टू जस्ट थोड़ा, मैंने कहती हूँ पूरा दिन न्यूज पढ़ते रहो देखते रहो, बट थोड़ा बहुत न्यूज और अपनी सोसाइटी के बारे में अवेयर रहना बहुत जरूरी है, ठीक है? सो चलिए बात करते हैं फिर से ढाका की. अब ये अभी आपने मुझे बताया दैट बांग्लादेश राइट नाउ इज द कैपिटल ऑफ, सॉरी, ढाका राइट नाउ इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, राइट? बट in the book, it is written that Mughals built the capital in the eastern delta at Dhaka, and the Mughals were ruling in India. So, what does this tell us about Dhaka? That back then Dhaka was a part of India only. Are you aware of that? Yes, ma'am. Yes, you know that Bangladesh was a part of India only. Ma'am, it was a part of the Indian subcontinent. Exactly, and it was, if Indian subcontinent, which kingdom did it come under? बताइए. West Bengal. द मतलब बंगाल. बंगाल region. पहले वेस्ट बंगाल अलग नहीं था चल रहा. पहले इट वाज ओनली बंगाल किंगडम, राइट? इट वाज बंगाल, राइट? बंगाल. एंड उसके बाद ब्रिटिशर्स ने बंगाल को डिवाइड किया था इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बंगाल, राइट? तो वेस्ट बंगाल तो अभी भी हमारी कंट्री का ही पार्ट है. जो बांग्लादेश था इट वाज इनिशियली ईस्टर्न बंगाल. और इंडिया के पार्टीशन के बाद क्या हुआ था, जो पाकिस्तान तो गया था पाकिस्तान के पास, बट दिस ईस्टर्न बंगाल वाज आल्सो गिवन टू पाकिस्तान. आज बांग्लादेशी हिंदूज के साथ ही गलत कर रहे हैं. इंडियन मतलब हिंदूज मान लो या इंडियन ओरिजिन के लोग मान लो जो वहां पे हैं, उनके साथ गलत कर रहे हैं. बट दे आर फॉरगेटिंग दिस कि जब बांग्लादेश वाज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, तो आपको पता है उसको पाकिस्तान से फ्रीडम किसने दिलवाई थी? हु हेल्प देम टू? Ma'am, India ने. इंडिया. Ma'am, Indira Gandhi. इंडिया ने. इट वाज इंडिया विच लिटरली हेल्प देम. एक मूवी भी बनी है इसके बारे में, मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है. Ma'am, Bhuj. Bhuj. Bhuj, yes, Aksa, very good. Bhuj is a movie which is completely dedicated to this only, and how Indian soldiers, Indian army has helped Bangladesh to emerge as an independent nation, right? So let's hope that they will not. Just a minute, beta.
सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया यहाँ तक। सो नाउ द अर्ली मुस्लिम्स ऑफ बंगाल वर मेनली द पीपल हु यूज्ड टू लिव इन टाउन्स। मोस्ट ऑफ देम वर सोल्जर्स, राइट? ज्यादातर उनमें से कौन थे? दे वर सोल्जर्स, राइट? बट दे वर ऑल्सो ट्रेडर्स, क्राफ्ट्समैन एंड रिलीजियस लीडर्स। बेटा आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही है? No, ma'am. No, No, ma'am. ठीक है, Ma'am. ठीक है, राइट। सो हाँ, सो वहां पे मेनली देवर सोल्जर्स, बट उसके साथ साथ वहां पे क्राफ्ट्समैन भी थे, वहां पे ट्रेडर्स भी थे और काफी रिलीजियस लीडर्स भी थे। एंड द मुस्लिम्स देयर केम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? साउथ एंड सेंट्रल एशिया एंड ऑल्सो फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, राइट? इफ यू नो दैट मोस्ट ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज आर इन द मिडिल ईस्टर्न एरिया ओनली। ठीक है, पता है आपको? Yes, ma'am. जी, ठीक है। So, and then Islam only began to spread quickly among local peasants and farming population from the 16th century onwards। मतलब वो लोग आ गए थे यहाँ पे 11th century में, बट इस्लाम का पॉपुलराइजेशन जो शुरू हुआ, जो स्प्रेड होना शुरू हुआ, वो 16th century के बाद से हुआ, राइट? When the Mughal Emperor Akbar encouraged the soldier saints to clear the thick forest areas to the east of the delta and use them for farming, right? उसने कहा जो सोल्जर सेंस, उसने कहा कि जो फॉरेस्टेड एरिया है आप उसको क्लियर करके वहां पे फार्मिंग करो एंड आराम से रहो। Many of these peers or the soldier saints, जो soldier saints थे उनको ही peers कहते थे, right? And their converts followed forms of Islam। their converts का मतलब है ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इस्लाम के थे नहीं, but they were converted to Islam under the influence of these peers। ठीक है, so they right, they were found only in Bengal back then। Then the officials and functionaries received land and often set up mosques that served as centers for religious transformation in these areas। वहां पे फिर क्या होता था? mosques बनी थी जहाँ पे religious transformation रहता था, because the population of Muslims was not way too much in India, right? It was when they acquired Bengal, then the certain people who came under their influence, they somehow converted themselves to Islam, right? So peers included saints or Sufis and other religious personalities, various Hindus and Buddhist deities, and even animistic spirits। इन सबको ही peers कहते हैं। The cult of peers became very popular and their shrines can be found everywhere in Bengal। आपको इनकी shrines क्या होती है पता है आपको? What are shrines? Tell me quickly। कोई भी रिलीजियस प्लेस। हाँ जी गुरुकरण। ma'am, shrines are the places, ma'am, where we pray to God. Exactly, a place where we go and where we pray to God, they are known as shrines। ठीक है, तो आपको बंगाल में बहुत ज्यादा shrines देखने को मिल जाएंगी। बंगाल ऑल्सो विटनेस्ड टेम्पल बिल्डिंग स्प्री। जैसे यहाँ पे मॉस्क बनी थी, ऐसे एक टाइम आया था जब बंगाल में बहुत ज्यादा टेम्पल्स बनना शुरू हो गए थे, which happened during the late 15th century and it culminated in the 19th century। यानी कि 15th century से शुरू हुए थे बनना और 19th century तक बहुत सारे टेम्पल्स बने वहां पे, राइट? We have already seen that temples and other religious structures were often built बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। जो भी इंडिविजुअल्स, या तो कोई राजा ने बनवा दिए या फिर कोई ग्रुप्स थे जो बहुत पावरफुल होते जा रहे थे, तो ये लोग पहले मंदिर या मस्जिदें क्यों बनवाते थे? कोई बता सकते हैं? क्या सिर्फ रिलीजियस पर्पस को सॉल्व करने के लिए बनाते थे या कोई और पर्पस भी था? No, ma'am. The religious places were known as the about the richness of the king, represent the king and the kingdom। Exactly. The king used to make these shrines or these temples or mosques to show how powerful he is। Because देखो अभी भी तो यही होता है ना, अगर किसी भी नेता को अपनी पावर दिखानी है तो भाई वो अपनी जनता के लिए, जैसे भी राम मंदिर बनवाया गया, ठीक है, या फिर हम कुछ भी, अगर किसी को, हमारे पास ज्यादा जो पॉपुलेशन जिसकी है, हम वैसी सी चीजें करेंगे जिससे कि हमारी जो जनता है वो खुश हो जाए, राइट? तो ये लोग ऐसी चीजें करवाते थे टू शो हाउ पावरफुल दे आर एंड टू गेट द फेथ एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ द
पीपल दे आर रूलिंग, उनको दिखाने के लिए कि देखो हम आपके लिए सब कर रहे हैं और हम इतने पावरफुल हैं कि हम आपके रिलीजन के लिए भी खड़े हो सकते हैं, वी कैन टेक स्टैंड फॉर दैट एज वेल. Many of the modest brick and terracotta temples in Bengal were built with the support of several low social groups, जैसे कि ऑयल प्रेसर्स हो गए या मेटल वर्कर्स हो गए. इन लोगों के सपोर्ट से भी कुछ मंदिर बने थे. The coming of the European trading companies created new economic opportunities. जब नई ट्रेडिंग कंपनीज आई तो नई अपॉर्चुनिटीज बनी. ठीक है. एंड as their social and economic position improved, they proclaimed their status through the construction of temples. जैसे से इनकी इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी होती गई तो उन्होंने क्या किया, टेम्पल्स बनवाए. ठीक है, इन्होंने टेम्पल्स बनवाए. फिर बाद में ले लेंगे, दोबारा जरूरत होगी. अरे मैं देन अब जैसे से इनको पावर मिलती गई, अपनी पावर को शोकेस करने के लिए, दिखाने के लिए उन्होंने टेम्पल्स बनवाए, मॉस्क बनवाए. एंड व्हेन द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, राइट, जब इन्होंने नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई तो मेनी फैमिलीज बिलोंग टू दीज सोशल ग्रुप्स. जैसे आप क्लास डिस्टर्ब करते हैं, कुछ टीचर्स क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मैं सबको निकाल दे रही हूँ क्लास के बाहर. ठीक है, चलिए. सो अब जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी, हमें पता है कि आप कुछ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के नाम बता सकते हो मुझे? कैन यू प्लीज टेल मी सम नेम्स? ईस्ट इंडिया कंपनी. हाँ जी. ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. देखो जितनी भी कंपनीज आई थी अलग अलग कंट्री से, उन्होंने अपनी कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी ही रखा हुआ था. सो देयर वाज ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ विच कंट्रीज? किन किन कंट्रीज आई थी बताओ? पहला इंग्लैंड, इंग्लैंड, पोर्चुगल, पोर्चुगीज, फ्रांस, फ्रेंच, डच, डच. दीज फोर, राइट. इनमें से सबसे पहले कौन आया था? फ्रेंच, पोर्चुगीज. इंग्लैंड, पोर्चुगीज. किसने ढूंढा था भाई? हु फाउंड द वास्को डी गामा. क्या क्या फाउंड किया था वास्को ड गामा एंड चंद्रा? इंडियन सबकॉन्टिनेंट. व्हाट? इंडियन सबकॉन्टिनेंट. Arey, he found the sea route as well, not only the Indian subcontinent. Right? He was the first, he was the Portuguese explorer, was the first one to find the sea route to the Indian subcontinent, and he is the only one who found the economic opportunities present in India. शायद वो नहीं आया होता तो हमें इतना लूटा नहीं गया होता. कि वो आया, उन्होंने रूट डिस्कवर किया, उसी रूट से फिर बाकी कंट्रीज भी आई, एंड देन वी नो द रेस्ट इज हिस्ट्री. ओके. सो अब जब ये कंपनीज आई, ठीक है, तो इनिशियली तो दे केम एज ट्रेडिंग कंसर्न्स एंड दे हैव गिवन अस गुड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एज वेल. अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी मिली जब सब आ रही थी, जब तक हमें ब्रिटिशर्स ने कॉन्कर नहीं किया था. इंडियंस वर हैविंग अ गुड टाइम, दे वर डूइंग गुड ट्रेड. ओके. सो then what happened is, they began to when the local the economic position improved and they proclaimed the status through the construction of temples. फिर अपना status दिखाने के लिए temples बनवाए. And the local deities once worshipped in thatched huts in villages. पहले जो अभी हम देखते हैं ना, कभी कभी पेड़ के नीचे छोटे से मंदिर बने हुए हैं, छोटी सी हट बनी हुई है, उसके अंदर मंदिर है. तो थैच मतलब छोटी सी टूटी उठी हट्स में जो मंदिर बने थे पहले, right, they gained the recognition of the brahmanas and the images become to be housed in the temples. फिर वो अच्छे से temples बनने लगे, उनकी पिक्चरें लोग मंदिरों में लगाने लगे. And the temples began to copy the double roofed and the four roof structure of the thatched huts. जैसे कि अब मैं देखो आपको दिखाती हूँ पिक्चर के थ्रू. जस्ट गिव मी अ मिनट. आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा ना, अपनी गोपुरम और शिखाज यहाँ बुक में तो दे रखी है. दिख रहे हैं बुक में?
दिख रही है आपको? ये जैसे हट्स होती थी ना, तो इन लोगों ने पहले जो टेम्पल्स बनाने शुरू किए वो भी हट्स की शेप में बनाने शुरू किए। देख रहे हो जैसे हट की शेप होती है वैसे ही बने बनाए टेम्पल्स। कैन यू सी इट? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना? देखो ये सब वेस्ट बंगाल के टेम्पल्स मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड सी हाउ दे हैव बीन मेड, राइट, इन द शेप ऑफ हट्स। जैसे थैच्ड हट होती थी, देखो ये पूरा दिखा रखा है। पहले कैसी हट में पूजा किया जाता था, राइट, एंड देन उसके ही जैसे इन्होंने टेम्पल्स बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, दिख रहा है आपको? कैन Yes, यू सी ma'am. इट चिल्ड्रन? ओके, Yes, ma'am. नाइस, वेरी गुड इफ यू कैन सी इट। ओके, तो अब ये सब जितना भी आर्किटेक्चर आया है ये सब एक तरीका रहता था राजाओं का अपनी पावर शोकेस करने का। इन द कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स फोर रूफ स्ट्रक्चर, द फोर triangular roofs placed on the four walls move up to converge on a curved line or a point, and temples were usually built on a square platform. ओके, और जो उनका इंटीरियर होता था वो रिलेटिवली प्लेन होता था, बट द आउटर वॉल्स ऑफ मेनी टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स, ऑर्नामेंटल टाइल्स, राइट, or the terracotta tablets. Terracotta temples बहुत famous हैं, right? Now, some temples, particularly in the Vishnupur in the Bankara district of West Bengal, such decorations reached a high degree of excellence. मतलब ये बहुत ही अच्छे से बन सकते थे। देखो आप, जैसे अगर आप देखो साउथ इंडियन के जो टेम्पल्स थे ये ज्यादातर किससे बने होते हैं? स्टोन से। whereas the temples of Bengal were built with the fired bricks. fired bricks किससे बनते थे? यानी कि ये टेम्पल बंगाल का दिख रहा है ना, कच्ची ईंट बोलते हैं। इस ईंट का नाम नहीं याद आ रहा है मुझे क्या बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, सो वो स्टोन की जगह उन ब्रिक्स से बनते थे। ठीक है, अगर आप वहां के देखोगे टेम्पल्स, तो वहां के तो बहुत ही खूबसूरत टेम्पल्स होते हैं, राइट, जो पत्थर से, किसी न किसी अच्छे पत्थर से बने होते हैं साउथ के टेम्पल्स। यहाँ के जो टेम्पल्स थे वो ब्रिक से बने होते थे। समझ में आ गया बंगाल के बारे में इतना? ठीक है, Yes, ma'am. अब जब हम बंगाल की बात करें और फिश की बात ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता, राइट? बिकॉज इतना तो आपको भी पता होगा दैट द स्टेपल फूड ऑफ बंगालीज इज व्हाट? बताइए। Fish. फिश। तो दे ईट फिश वेरी हैप्पीली, वो बहुत खुशी खुशी फिश खाते हैं, राइट? फिश एंड राइस इज their staple food. So traditional food habits are generally based on locally available items of food. अब जो भी ट्रेडिशनल फूड किसी भी कल्चर का होता है, रीजन का होता है, तो इट इज बेस्ड ऑन कि उस रीजन में मतलब रीजन में बहुत क्या ही चीज बहुत ज्यादा अवेलेबल है, राइट? जिस चीज की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है वही वहाँ का रीजनल फूड बन जाती है। जैसे कि अगर हम राजस्थान की बात करें तो बाटी चूरमा या चोखा, राइट, इसलिए होता है बिकॉज वहां पे उस टाइप की चीजें अवेलेबल होती है ना? सिमिलरली साउथ में हम जाएं तो वहाँ पे इडली डोसा इसलिए होता है बिकॉज वहाँ पे राइस ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो उस राइस से उन्होंने इडली डोसा बनाना शुरू कर दिया। नाउ बंगाल इज अ रिवराइन प्लेन विच प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ फिश एंड राइस। अब बंगाल एक ऐसा एरिया है जो कि प्लेन्स भी है और रिवर के पास भी है, तो वहाँ पे राइस का प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता है, उसके साथ साथ वहाँ पे उन्हें बहुत फिश भी मिलती है। Understandably, these two items figure prominently in the menu of even poor Bengalis. और ये जो दो आइटम्स है ऐसा नहीं आपको कि सिर्फ और सिर्फ रिच फैमिली से मिलेंगे ना, ये आपको पुअर फैमिली से भी मिलेंगे। रिच एंड पुअर ईट इट अलाइक, बस उसको बनाने का तरीका, प्रेजेंटेशन अलग हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि हम जो पानी पूरी ठेले से 10 रुपए की चाय खरीद के खाते हैं, वही अगर आप खाना चाहेंगे किसी होटल में जाके, राइट, तो वही पानी पूरी शायद आपको 500 की एक या 500 की चाय मिलेंगी, राइट? तो चीज सेम होती है बट प्रेजेंटेशन अलग है। ओ वाओ, ऋषिता इज बंगाली। तो ऋषिता, डू यू लाइक फिश? Yes, ma'am. We call it मच्छी भात in Bengali, right? Mach bhat. And salad. माछ भात। So now when Rishita will come to school, she'll bring Rasgulla for all of us. ठीक है बेटा? सौंदेश and रसगुल्ला you'll bring. Okay ऋषिता? ठीक है, चलो डन है। मेरे लिए तो ले आना, इन लोग के लिए मत लाना। ठीक है, nice. So, understandably, these two items figure prominently in the menu of even poor Bengalis. मैंने आपको बताया ना कि सब घरों में आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, राइट? What? माछ भात, जैसे इसने बताया उसे, है ना? एंड वो लोग राइस भी ना, दे डोंट कंज्यूम राइस विद स्पून, नो। मतलब ट्रेडिशनली वो लोग चावल जो है वो हाथ से ही खाते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर। अगर आप साउथ इंडिया में जाओ तो आप साउथ इंडियंस को देखोगे कि दे फॉलो देयर कल्चर वेरी प्राउडली। मतलब दे डोंट फील अशेम्ड कि अरे ऐसे कैसे खा सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं होता है।
They very proudly sit on the floor, eat on banana leaves, and eat with their hands. I think which is a very good way. आपका जो भी कल्चर है आपको उसके लिए कभी ashamed नहीं फील करना चाहिए. You should follow it proudly. है ना. बस ऐसा नहीं कि अगर हम एक टेबल पे बैठ के सबके साथ किसी ऑफिशियल फॉर्मल मीटिंग में खा रहे हैं, वहां सब तमीज से खाना खा रहे हैं और हम ऐसे ऐसे खाने लगे तो वो बुरा लगेगा. इट डिपेंड्स ऑन प्लेस टू प्लेस और कैसे कहाँ खा रहे हैं. Right? So, fishing has always been an important occupation, and Bengali literature contains several references to fish, right? बंगाल के लिटरेचर में भी आपको मतलब बंगाल के लिए बंगाल में फिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कल्चर. तो उनके आप देखो उनके फेस्टिवल्स में, उनके लिटरेचर में, उनके फूड में फिश इज अ वेरी प्रोमिनेंट रोल टू प्ले. राइट. What is more, the terracotta the plaques on the walls of temples and the Buddhist monasteries depicts scenes of fish being dressed and taken to the market in baskets. बल्कि वहाँ के जो मंदिरों के walls हैं या फिर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के walls हैं उसमें भी आपको अलग अलग तरीके से फिश का ड्राइंग्स या फिर उनका स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं. उसमें फिश को अच्छे से ड्रेस कर रखा होता है इन वेरियस मैनर्स. राइट. So, like I told you, fish is a very prominent figure in the Bengali culture. ठीक है. Now, Brahmins were not. अब दिक्कत आई एक ये आ गई कि fish we all know is non-veg. ये तो non-vegetarian food में आ गया. और जैसा कि हम सब बचपन से देखते हो, सुनते हो, पढ़ते आए हैं कि भूख लिया. ब्राह्मण. क्या हो गया आरव भटनागर? सब ठीक है बेटा? राइट. So, like we know that जो Brahmins हैं, the Brahmins are supposed to be pure vegetarians. वो तो नॉनवेज नहीं खा सकते. बट क्योंकि बंगाल में फिश ही अवेलेबल होती है, वो क्या करते हैं. Initially, the Brahmins were not allowed to eat fish in the eat non-vegetarian food, but the popularity of fish in the local diet made the Brahmanical authorities relax this prohibition for the Bengal Brahmins. बट ये जो रूल था नॉनवेज ना खाने का, तो जो ब्राह्मण के एसोसिएशंस होती होंगी या जो भी होता होगा, वहां पे कहा गया कि चलो अब बंगाल में तो फिश इतनी पॉपुलर है कि उनके तो रिलीजियस फेस्टिवल्स में भी बनती है. जैसे हमारे यहाँ जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं उसमें हम पंडित्स को बुलाते हैं, ब्राह्मण्स को इनवाइट करते हैं, उनको खाना भी खिलाते हैं. अब बंगाल में तो रिलीजियस ओकेजन्स में भी बनती है, अब उन्हें बुलाएंगे तो खिलाएंगे भी. तो इसीलिए जो ब्राह्मण्स है उन्होंने ये वाला जो क्लॉज था एक नॉनवेज ना खाने वाला ब्राह्मण्स का, कि ब्राह्मण्स को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, उन्होंने इस क्लॉज को जो आपके बंगाल के ब्राह्मण्स थे उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया, मतलब ईज आउट कर दिया. दैट अकॉर्डिंग टू द बृहधर्मा पुराना, अ 13th century Sanskrit text from Bengal, it permitted the local Brahmins of Bengal to eat certain varieties of fish. Right? उसके according, because maybe it is also about their survival. ठीक है. कि कुछ varieties of fish की है ऐसी जो कि बंगाल के ब्राह्मण्स if they want they can eat. ठीक है. चैप्टर खत्म. Go through it once very quickly. In case there is something you have not understood, please let me know. I'm giving you 2 minutes for that. मुझे लग तो नहीं रहा कि आप में से किसी को कोई डाउट है. Shall we go ahead with the question answers? Yes. Okay. So now, as you know, the rule is if you want to give the answer, you will raise your hand. Am I clear with that? चलिए. The first question is,
State the region where Chera kingdom was established. Yes, Rishita. Acha, you have not raised your hand. If you know the answer, please raise your hands. Yes, Prisha. Only one girl. Wait, Prisha. I know, Shivika. Only two children, only three kids who know the answer. Where we have both the section mix out of 80 students who should have been present here. Chalo, hai to come. Only four students know the answer. That's so sad. क्यों भाई Can I? गुरकरन? क्यों भाई गुरकरन आंसर आंसर नहीं बताए क्या? वशिष्ठ विनायक, यज्ञांशी पटेल, कहाँ सो रहे हो बच्चा? मीक्षा गंगवार, व्योम गोयल, आराध्या, फातिमा, ऋत्विक, जसलीन, आर यू देयर इन द क्लास? बिकॉज कैमरास तो आपने ऑफ कर रखे हैं. रैन, Yes, ma'am. मैं नाम लूंगी तब आप लोग के हैंड रेज होंगे. आई वॉन्ट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू नो द आंसर. प्लीज रेज योर हैंड्स. राघव लेके मैं देख रही हूँ सब. कैवल्य त्रिपाठी, आपको नहीं आता आंसर? Ma'am, may I tell? बच्चे, if you know, you just raise your hand. I just want to see how many of you know the answer. Because it's something very easy, very basic. So sad. Only 8 hands can be seen. That's so sad. Yes, Prisha, tell me the answer. Ma'am, page 73H. The Chera kingdom of Mayodhyapuram was established in the 9th century in the southwestern part of the peninsula, part of present-day Kerala. Absolutely correct. ठीक है. आप simply ये भी लिख सकते हो that it was found in the southwestern part, which is presently known as Kerala. ठीक है. Excuse me, ma'am. Yes, बेटा. Ma'am, can we simply write Kerala? नहीं तो प्रेजेंट डे केरला लिख सकते हो. बट इट वाज नॉट ओनली केरला, इट वाज आल्सो द नियर बाय रीजन. तो साउथ वेस्टर्न पार्ट लिखोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि जो किंगडम था, चोला किंगडम, उसकी बाउंड्री सिर्फ और सिर्फ केरला तक ही थोड़ी सीमित थी. ठीक है. अभी क्लियर? Yes, ma'am. चलिए. नाउ प्रिशा, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. What was Manipravalam? यस चंद्रा. The answer is on page 74, second paragraph. Manipravalam, literally diamonds and coals, referring to the two languages, Sanskrit and the regional language. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिशा. Where is the Jagannatha temple located? यस हार्दिक. Jagannath Temple is in Puri, Odisha, also which is known as Temple Town. Jagannath temple is located in Puri, Odisha, which is also known as Temple Town. Yes. Next question, Prisha. Who erected the Jagannath temple? Who erected the Jagannath temple? Dhruti. Dhruti, answer. Ma'am, can you tell which question? The fourth one, right? Yeah. Ma'am, I don't know the answer. I knew the third one. God. अमीक्षा बताइए. The Jagannath temple was erected by King Anandavarman Chodaganga Deva of the Eastern Ganga dynasty in 12th century. ये थैंक यू अमीक्षा, इतनी इतनी प्यारी आवाज है आपकी, तो बोला करो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिशा. Name any two Rajput dynasties. Name any two Rajput dynasties. I want more hands to be raised. If you know the answer, please raise your hands. Apart from Hardik and Amiksha.
Nobody else apart from Amiksha and Hardik knows the answer. वाह, कहाँ गई ज्ञानशी? बताओ आंसर। Ma'am, I don't know. Fifth, I don't know. वेरी गुड। गुरकरण सिंह। बताइए हार्दिक। Ma'am, I know one. यस अक्सर, टेल मी। उसमें एक मालूम है। Ma'am, Chauhan's. क्या बोला आपने? चौहान्स। Ma'am, Chauhan's. The ओके। इसमें चौहान। हाँ जी हार्दिक, डू यू नो द अदर वन? हार्दिक पॉज हो गया क्या बेचारा? इट फील सो। अमीक्षा, बताइए। Chauhans and Solankis. चौहान, हाँ ठीक है, चौहान एंड सोलंकी इज द करेक्ट आंसर। Krisha, next question. Who was Prithviraj Chauhan? Yes, Apsa. Ma'am, Prithviraj was a king of Chauhan dynasty during the second half of the 12th century. ठीक है। Anything else anybody would like to add? Yes, Dakshita. Ma'am, Prithviraj was a king of Chauhan dynasty during the second half of the 12th century. He died a hero's death for defeating his territory from the Turkish invader Muhammad Ghori. Correct. I think this one is a bit more explanatory and I find it better. Yes, next question, Prisha. State any two famous gharanas of Kathak. Name any two gharanas of Kathak. This answer will be told to us by Samar Tikyani. Yes, Mr. Tikyani, बताएंगे आप आंसर? अगर आप लोग क्लास अटेंड करें तो कैमरा भी ऑन कर लीजिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो। I'm sorry, I was disconnected because the network error came. I could get that, no issues. Two घरानास of कथक। राघव ने की बताना जरा, घरानास of कथक। ये नहीं पता। हाँ, शर्म नहीं आ रही है बोलते हुए? व्योम Ma'am, may गोयल I आप tell? बता दो, व्योम गोयल आप बता दो। व्योम गोयल तुम्हें तो पता Ma'am, होना I चाहिए। don't know. ओह गॉड, ये Ma'am, मैंने may I क्यों tell? पढ़ा है फिर? May I tell? नो वशिष्ठ।